This is Dheeraj Kumar Gupta. Welcome you all in 12th account class. Today I will teach you partnership. I am going to start your first module, first chapter, partnership from very beginning. At first I would like to tell you in 12th accounts partnership it's a very easy chapter and not easy, it's a very interesting chapter. If you read very carefully, then there will be no problem. So let's start fundamental of partnership. Partnership accounting. Okay. So in partnership, introduction. At first, I would like to tell you all these things of the basics of partnership. So you need to know about at first advantages of and disadvantages of partnership accounting, and then after I will tell you about the partnership agreement. What is the agreement? And capital accounts, current account, share of profit and goodwill. All these things I will tell you about the partnership. This is the introduction. Then after I will tell you the advantages. So what is the advantages? Increase capital, you know very well. Then if any one person start business, and then there is only one capital introduction. But if two or more persons start business with this one place in one business, then they have to contribute more capital, mixed capital. It is the increasing in capital. And the second advantage is increase knowledge and specialist skill. Two or more person is there, then many persons in the partnership, they have so many specialists in skills. Share risk, they risk also share. And flexible working and cover for holidays and illness. So there is a flexible working. If one partner is not able to do work, then second partner can take the work, can take the action. And now I will tell you what is the disadvantages of partnership. So at first disadvantage is there, less profit because of profit share. So you can say that if more partner, 10 partners are there, and one business is there, and profit is distributed among all the partners, then in one partner's hand there is less profit will be there. And a possible disagreement over money, where there is so much people are there, then there is a possibilities for disagreement. Possible disagreement over the direction of the business. And now I am talking about the partnership agreement. What is the agreement? You know, partnership agreement. Before starting the business of partnership, one should have the create an agreement. That is called partnership agreement. But in our partnership act, it is not necessary to create partnership agreement. But the partnership act states that if there is no written legal agreement for the partnership, then following must apply: equal profit share, no salaries, and no interest on capital will be given. And if we talk about the capital accounts, each partner must have a capital accounts to show the amount of capital owed to the partners by the business. And entry will be there: bank account debit and capital account credit. It means you will pass the entry bank account debit to capital account. And then if we talking about the capital, then there is a capital. Two types capitals are there: fixed capital and fluctuating capital. At first I am talking about fixed capital account. The amount of capital will remain fixed and only change if the agreement changes and goodwill is introduced. All the transaction for each partner will be recorded in the partner's current account. Okay. And now I will talk about the fluctuating capital. This is used when the partnership does not operate at a system of current account, opening capital plus profit shares minus drawing equal to closing capital. You know, fixed capital and this is the fixed capital and the fluctuating capital. Now look here. If the partner wants to join a firm, then they have to introduce the capital. So partner introduce capital in the firm, and firm on profit or loss. P and L oblique L means profit or loss. Partners introduce capital in the firm
and firm earn profit and loss, and that profit loss is of the partner, and again introduced by the partner in the capital as a capital. So it means the capital of the partner remain in the business for the firm. Then the capital is two types, fixed capital and the fluctuating capital. If we talking about the fixed capital, then there is two accounts is opened. First, partner's capital account, and second, partner's current account. And in the fluctuating capital, there is only one account will be open, partner's capital account. So understand? Any problem is there? Now listen again. I am telling you again. I am going to explain you in हिंदी ऑल्सो. लिसन, बच्चों, फर्म में जब पार्टनर्स अपने कैपिटल लगाते हैं, ठीक है, लगाने के बाद फर्म जो प्रॉफिट लॉस अर्न करती है वो पार्टनर्स के कैपिटल में ही डाल दिया जाता है, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल थ्रू इसको दिया जाता है. यानी फर्म और पार्टनर के बीच में एक कैपिटल है जो एक ब्रिज का काम करता है. यानी डायरेक्टली अगर हम कहें, फर्म और पार्टनर्स आपस में सीधा कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते. फर्म और पार्टनर के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होगा, इफ एनी ट्रांजेक्शन टू प्लेस, देन इट विल बी विद द कैपिटल अकाउंट. कैपिटल एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है. और जो कैपिटल होता है ये टू टाइप्स के होते हैं, एक फिक्स कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. मतलब जब पार्टनर्स चाहते हैं कि हमारी कैपिटल क्या हो, फिक्स हो जाए, जितना हमने स्टार्टिंग कैपिटल लगाया है उतना ही फिक्स रहे ड्यूरिंग द ईयर, उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम नहीं करना चाहते हैं. दैट इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल. एंड व्हेन द पार्टनर वांट्स टू फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएटिंग मीन्स फ्लक्चुएट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ. अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि व्हाटसएवर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ड्यूरिंग द ईयर इन द ट्रांजेक्शन, बिकॉज ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस, then capital will be affected, then they open fluctuating capital. मीन्स कैपिटल क्या होगा, एक ही अकाउंट खुलेगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट, उसमें ड्राइंग्स होगा या प्रॉफिट लॉस शेयर होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा. इससे घटेगा भी और बढ़ेगा भी, फ्लक्चुएट होता रहेगा. बट इन फिक्स कैपिटल जो कैपिटल स्टार्टिंग में लगाए रहेंगे वही कैपिटल क्या होगा, यहाँ पर जब कैपिटल अकाउंट में जाएगा. बाकी कोई भी इंक्रीजिंग या कोई भी डिक्रीजिंग, या प्रॉफिट में लॉस का शेयर बांटना हो या ड्राइंग्स करना हो, वो सारे कहाँ जाएंगे, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में मेंटेन किए जाएंगे, ठीक है. नाउ लेट्स गो फर्दर. नाउ आई विल टॉक अबाउट characteristics of partnership. Okay, now we will talk about characteristics of partnership. Okay, then look, the maximum number of partners in a partnership firm is 100. So you know, minimum 2 persons are required for a partnership, because a single person cannot make a partnership. So minimum 2 persons are required and maximum limit are 100. The new Company Act 2013 provides that the maximum number of members for a partnership shall not exceed 100. A partnership is created by the agreement of the at least 2 or more individuals to contribute capital and engage in business. Thus, on the other hand, the minimum number of partners required to form a partnership is what? 2. Okay. Now, governed by the Partnership Act 1932. Okay. So, what we have read in this chapter, that will all the governed by Partnership Act 1932. And then partnership agreement can be drawn up to define the right and obligation of the partners. ठीक है. If no agreement, the Partnership Act 1932 applies. And now I will talk about partnership agreement. What is agreement? You know what is agreement? So just I have told you that a partnership agreement, not all partners have agreement, and however a written partnership agreement will be help prevent problem and solve dispute between the partners. बच्चों, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था, मैं रिपीट कर दूं कि पार्टनरशिप में ध्यान दीजिएगा मेरी बात को. लिसन टू केयरफुली. नाउ लिसन टू केयरफुली. लिसन टू मी. इन द पार्टनरशिप में एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है. पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने ये एग्रीमेंट नहीं किया है, ये कंपलसरी नहीं किया है कि सारे पार्टनरशिप में हम एग्रीमेंट बनाएं और पार्टनरशिप डीड
हम बनाएं, ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए कंपलसरी नहीं किया गया, ये तो वॉलंटरी रखा गया है। आपकी मर्ज़ी है आप एग्रीमेंट बनाइए, आपकी मर्ज़ी नहीं है आप एग्रीमेंट मत बनाइए, ओनली काम कीजिए, ओनली बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। रजिस्ट्रेशन कराना इसमें कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बट अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आप डीड बनाते हैं, आप एग्रीमेंट बनाते हैं, एक पहले एक बनता है एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट का बनती है डीड और वो फिर रजिस्ट्रार के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। अगर इस प्रोसेस से आप गुजरते हैं तो इन फ्यूचर में आने वाले डिस्प्यूट से आप बच सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप जब एग्रीमेंट बनाते हैं उस एग्रीमेंट में आप क्या लिखते हैं कि पार्टनर्स, कितने पार्टनर्स होंगे, पार्टनर्स का नाम क्या होगा, प्रॉफिट लॉस का रेशियो क्या होगा, कौन कितना हिस्सा प्रॉफिट लॉस आपस में शेयर करेगा, कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें जो होती हैं रिगार्डिंग पार्टनरशिप से, सब उसमें इस एग्रीमेंट में लिखी जाती है और पार्टनर उस पर साइन कर लेते हैं और रजिस्टर हो जाता है। इन फ्यूचर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो जो आपने एग्रीमेंट बनाया है वही एग्रीमेंट क्या होगा, काम आएगा उस टाइम। इफ़ देयर इज नो एग्रीमेंट देन एट दैट टाइम पार्टनरशिप एक्ट 1930 विल अप्लाई। अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया है ऐसे केस में पार्टनरशिप डिस्प्यूट अगर हुआ तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 आप पर अप्लाई हो जाएगा, यानी पार्टनरशिप फॉर्म पर अप्लाई हो जाएगा। और वो कहता क्या है अभी हम बताते हैं आगे, पार्टनरशिप सुन लीजिए वो क्या कहता है। वो ये अभी हमने बताया भी आपको, वो कहता है कि अगर कोई भी आपने मान लीजिए कि ओरली बनाया था कि रेशियो 2/3 और 1/3 होगा, ठीक है, बट बाद में डिस्प्यूट हो गया तो अब कोर्ट में जब केस जाएगा तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपने एग्रीमेंट बनाया था। और आप बोलेंगे हाँ हमने एग्रीमेंट बनाया था, तो जो एग्रीमेंट में आपने लिखा था वही उसी के आधार पर कोर्ट फैसला देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया था, ठीक है, तो उस टाइम कोर्ट क्या करेगा, अब आपके बीच में क्या बात हुई थी ओरली केस कैसे आपने स्टार्ट किया इससे मतलब नहीं है। अब एक्ट क्या कहता है वो माने रखता है। अब एक्ट ये कहता है कि प्रॉफिट लॉस इक्वल बटेगा, ठीक है, और पार्टनर्स के लोन पर इंटरेस्ट मैक्सिमम 6% ही दिया जाएगा, इससे भी इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ड्राइंग इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, और कोई पार्टनर को सैलरी वगैरह कमीशन वगैरह नहीं दिया जाएगा, ये एक्ट कहता है। अगर यही चीज़ आप एग्रीमेंट में लिख लिए होते कितना इतना देना है तो मान्य हो जाता, ठीक है। आइए इसको और हम बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए तो इसमें आप देखिए यहाँ पर ये कह रहा है नॉट ऑल बट प्रिवेंट प्रॉब्लम इन द सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें देन आफ्टर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, आइए हम लोग बात कर लेते हैं अब टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट की, ठीक है। नाउ व्हाट इज द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। फर्स्ट, amount of capital to be contributed by each partner. If the partner wants to make a agreement, तो क्या क्या एग्रीमेंट में लिखा जाएगा। एट फर्स्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ईच पार्टनर, सारे पार्टनर्स यानी प्रत्येक पार्टनर कितने कितने कैपिटल लगाएंगे इंट्रोड्यूस करेंगे, इसके बारे में डिटेल में लिखा जाएगा। सेकेंड थिंग, रेशियो विच प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इन एग्रीमेंट, सेकेंड चीज़ अभी हमने बताया आपको ना। देन सेकेंड, रेशियो कितना रेशियो वो प्रॉफिट लॉस आपस में शेयर करेंगे, दैट विल बी डिस्कस, दैट विल बी रिटेन इन दैट एग्रीमेंट। एंड देन आफ्टर rate of interest if any to be allowed on partners capital. If there is agreement then interest on rate capital interest will be allowed. If there is no agreement then interest on capital will not be allowed. And then rate of interest if any charged on partners drawing. If deed is there then it should be maintained, otherwise not. Again next, rate of interest if any to be allowed on partner's loan account. It means if agreement is there, if partner wants to give loan to the firm, it means अगर पार्टनर्स ने फर्म को कोई लोन दिया है, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर पार्टनर्स ने फर्म में कैपिटल के अलावा अलग से भी अमाउंट यूज़ किया है एज ए लोन, और उसने अगर एग्रीमेंट कर लिया है कि मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए होगा, ठीक है, और एग्रीमेंट कर लिया गया है, देन शुड बी गिवन, उसको मिलेगा 10%। बट इफ़ देयर इज़ नो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं होगा, इन दिस सिचुएशन
द पार्टनर विल गेट ओनली 6% बिकॉज इट हैज़ बीन सेट इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसमें कहा गया है कि अगर कोई लोन अगर पार्टनर देता है तो सिर्फ और सिर्फ 6% ही उसको दिया जाएगा इंटरेस्ट, इससे ऊपर नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो डीड होना और ना होना दोनों में अंतर आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए, एंड सैलरी टू बी पेड टू द पार्टनर्स, इसके बारे में भी एग्रीमेंट बना ली जाएगी कि पार्टनर्स को अगर सैलरी, जो पार्टनर काम भी करते हैं फर्म में अगर खुद में, तो उसको कितनी सैलरी दी जाए, इस बात का भी एग्रीमेंट पहले से कर लिया जाए। एग्रीमेंट नहीं है तो नो सैलरी विल बी गिवन। देन आफ्टर कुछ और आगे की अगर बात करें तो इफ पार्टनरशिप एक्ट, अब देखो नाउ लुक हियर, अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं कि पार्टनरशिप में अगर, अभी हमने बात किया आपसे कि जब एग्रीमेंट होता है तो किस बात का एग्रीमेंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जब पार्टनरशिप की, हम देखिए सिस्टम आप यहाँ पर कि पार्टनरशिप हमको क्या करना है यहाँ पर, अब्सेंस, इन द केस ऑफ अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट द पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइज। ठीक है, अगर पार्टनरशिप में आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया, अब तक हमने बात किया था आपने एग्रीमेंट बनाने के बारे में, अब बता रहे हैं एग्रीमेंट अगर आपने नहीं बनाया ओरली, क्योंकि कंपल्सरी है नहीं, ओरली आपने कर लिया तो क्या होगा, अभी हमने बता दिया था, रिपीट करते हैं। तो पहला बात उसमें ये होगा कि प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड बाई पार्टनर्स इक्वली, ओके। एंड सेकेंड, नो इंटरेस्ट इज टू पेड ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, आई हैव डिस्कस ऑलरेडी। एंड पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट of 6% per annum on loan to the firm, okay। and no salary are allowed to partners। ये सारी बातें, 5 बात हमने किया आपसे, क्या क्या किया, 5 बात हमने आपसे ये किया। पहला, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, फिर सुनिए, अगर पार्टनरशिप में एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, पहली पॉइंट, प्रॉफिट लॉस इक्वल बटेगा और कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा और लोन पर सिर्फ मैक्सिमम 6% का ही इंटरेस्ट मिलेगा और सैलरी अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर आप डीड बनाए होते, फिर से रिपीट कर, अगर डीड बना होता, डीड का ऑप्शंस ना होता, तो ये 5 पॉइंट जो है ना, ये 5 पॉइंट पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताए गए हैं, उनके हिसाब से काम हुआ। अगर आप डीड बनाए होते तो ये 5 अप्लाई ना होता, फिर आप जो आपने एग्रीमेंट किया होता, जैसे जैसे आप एग्रीमेंट किए होते वही आप पर लागू हो जाता। यानी पार्टनरशिप में एक्ट ने आपको ये आज़ादी दिया हुआ है कि अगर आपने एक्ट बनाया है तो, अगर आपने एग्रीमेंट आपने अगर बनाया है तो आप एग्रीमेंट के हिसाब से काम करिए, अगर एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो ये 5 बातें आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, now I am going to tell you partnership definition. According to Indian Partnership Act 1932, partnership as the relationship between person who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार बताया गया था डेफिनेशन कि पार्टनरशिप में ऐसा रिलेशनशिप होता है बिटवीन द पर्सन जो कि आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि से प्रॉफिट लॉस शेयर करने के लिए किसी बिजनेस में एंगेज होते हैं, जिसमें प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं। वे उसमें क्या होता है, कई सारे मिल के काम करते हैं या फिर कोई एक सभी के बिहाफ पर काम करता है। ठीक है, नाउ लेट्स फर्दर पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज डीड? आई हैव जस्ट डिस्कस्ड पार्टनरशिप इज फॉर्म बाय एन एग्रीमेंट मे बी रिटेन और ओरल। यानी पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होगा वो एग्रीमेंट थ्रू फॉर्म होगा या वो ओरल हो या रिटेन हो। दोनों अभी डिस्कस किया हमने आपसे कि अगर ओरल होगा तो भी क्या होगा और रिटेन करेंगे तो भी क्या होगा। थ्रू द लॉ डज नॉट रिक्वायर दैट देयर शुड बी एन एग्रीमेंट इन राइटिंग बट द ऑब्जर्व दैट ऑफ द रिटेन एग्रीमेंट मे बी सोर्स ऑफ द trouble in the managing the affairs of the managing affairs of the partnership। मीन्स अगर पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट है, रिटेन एग्रीमेंट आप बनाए हैं तो फ्यूचर में बिजनेस करने में आसानी होगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स। 2 और मोर पर्सन एट फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज व्हाट? 2 और मोर पर्सन, इसमें कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए बेटा? 100। ठीक है, अभी बताया हमने आपको। एंड देन
agreement. Partnership deed is the result of an agreement. It must come into the existence by the agreement and not by the operation of law. Such an agreement of the can either oral or written. Okay, and now we are talking about the share of profit. The agreement between two partners must be एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। शेयर एंड प्रॉफिट बिजनेस ज़रूरी होता है बेटा, क्योंकि पार्टनरशिप करेंगे तो इसका ये करेक्टरिस्टिक्स है कि प्रॉफिट लॉस आपस में बांटते हैं लोग बिजनेस का। एंड रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ईच पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ एज वेल एज पार्टनर ऑफ द फर्म। एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज, एंड प्रिंसिपल बिकॉज द हिमसेल्फ कैन बाइंड द बाय द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर। यानी कि रिलेशनशिप क्या है इसमें बिटवीन रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट क्या रिश्ता होता है। फिर राइट्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में बताया गया यहाँ पर आपको। व्हाट इज़ द राइट्स ऑफ, दे ऑल आर रिटन नोट्स विच हैज़ बीन सेंड टू यू इन PDF फॉर्मेट, you should note. Okay, rights of partner. Every partner has the right to share profit or losses with other partners, and every partner has the right to take part in the conduct of the business. This is the rights of partner. Every partner has the right to consult in the matter of within the partnership business. Every partner has the right to inspect, have the copy of the books of accounts, सारे accounts check कर सकता है। Every partner has a right to disallow the admission of new partner. अगर कोई नया पार्टनर और आना चाहता है उसमें अगर पुराने पार्टनर्स को राइट होता है कि उसका अगर उसको डिसअलाउड भी कर सकता है कि नहीं, वो आना ना आना भी वो अपना हस्तक्षेप कर सकता है, उसके राइट्स हैं। एवरी पार्टनर एंड ओनर द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, सभी पार्टनर्स क्या होते हैं, जॉइंट ओनर होते हैं पार्टनर्स के, पार्टनरशिप की फर्म की प्रॉपर्टी के, क्योंकि सभी मालिक हैं, सबने कैपिटल लगाया है। If a partner has given loan to the firm, then you know very well the interest will be paid maximum 6% per annum if there is no deed. Now let's talk about contents of partnership deed. अगर आप deed बनाते हैं तो deed में आप क्या क्या लिखेंगे, तो at first you have to write the partnership deed should be contain the following. First, the name of and address of the firm, name and address of the partners, type and nature of the business. This is the content should be written in the partnership deed. Capital contribution by each partner, interest on capital, rate, drawings, rate of interest on drawing, profit sharing ratio, salary to partner, methods of valuation of rupees, accounting period of the firm, and method of recording of the firm, the mode of auditor's appointment, date of commencement of business or partnership, duration of partnership, detail of bank account, rules to be followed in case of the admission of partners, rule to follow the time retirement of the partner and settlement of dispute. ये सारी बातें आपके इसमें डीड में लिखी जाती है अभी रिटर्न आप बनाते हैं तो। नाउ इम्पोर्टेंस रूल अप्लीकेबल इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो हमने आपको बता दिया, अभी डिस्कस किया हमने इसके बारे में आपको कि जब डीड नहीं होता है तो क्या होता है, 4-5 पॉइंट्स थी जो हम डिस्कस आपसे हमने कर लिया था। एंड देन नाउ वी विल टॉक अबाउट डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर दैट एट फर्स्ट आई विल टेल यू रिगार्डिंग दिस। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू से टू नोट ऑल द बेसिक्स and all the fundamentals regarding partnership. Then after I will start next numerical. So for today it's okay, it's enough, and I hope you understand all these things, and you should note in your copy. Then after I will meet you tomorrow with the next class and next topic and with some numerical question also. Thank you. Be happy.